بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم اپنا لیسن سید جمال الدین الافغانی اس کا جو ہے ہم نے کل کمپلیٹ کر لیا تھا 2-3-4 دن میں جو ہے الحمدللہ ہم نے لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اس کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا، اور آج آپ لوگ نکالیے گا پیج نمبر 8 جس پر ہے التمارین۔ فرسٹ ایئر میں بھی ہم نے پوری جو بک ہے اس کا جو ہے آپ لوگوں کو مکمل آئیڈیا ہے کہ لیسن کے فوراً بعد ہم اس کی جو ایکسرسائز جو مشق جو تمارین کہلاتی ہے ہم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے ڈیٹیل سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو لیسن کیونکہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو ہے ایک نوٹ بک جو ہے وہ ایک بنائیے، ایک الگ سے خریدیے، اور جو ہے اس پر اوپر آپ لوگوں نے لیسن کا نام لکھنا ہے سید جمال الدین الافغانی، اور اس کے بعد کویسچن نمبر 1 عجیب اما یاتی من الاسئلتی عجیبی، عجیب یا اور آگے جیسے اس کے بعد عجیبی، تو عجیبی جو ہے مؤنث کے لیے جو ہے اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ جواب دیجئے اما اس کے بارے میں جو یاتی نیچے آ رہے ہیں، من الاسئلتی، من کا مطلب سے اسئلتن سوال واحد جمع اسئلتن سوالات، تو نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے، اور یہ جوابات جو آپ لوگوں نے دینے ہیں یہ عربی زبان میں دینے ہیں، اور یہ تمام جو سوالات ہیں ان کے جو ہے میننگ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ابھی بولے جائیں گے، اور آپ لوگوں نے یہ اپنا جو لیسن آپ لوگوں نے پڑھا ہے ان تمام سوالات کے جوابات اس لیسن کے اندر موجود ہے، تو کوئی آپ لوگوں کے لیے ایسا مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو نوٹ بک خریدنی ہے ایک تیار کرنی ہے، ساتھ ساتھ اوپر ٹاپک کا نام لکھیے، نیچے کویسچن نمبر 1 اور اس کے تحت جتنے جو 7 سوالات ہیں جن کو ابھی بولا جائے گا کہ ان سے کیا مراد ہے ان کے جوابات آپ لوگوں نے اپنے لیسن سے جو ہے وہ سمجھ کے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے، اور جو ہے تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی یہ جو ایکسرسائز جو ہیں تمارین لیسن کے اینڈ ہونے پہ یہ بھی آپ لوگوں کی تیار ہوتی چلی جائیں۔ ظاہر ہے پیپر میں آپ لوگوں کے یہ سارا جو ہے ترجمہ، اس کے بعد یہ سوالات کے عربی میں جوابات دینا، خالی جگہیں، غلط جملوں کو درست کرنا، اور مختلف جو کلمات ہیں ان سے عربی میں جملے بنانا، اور واحد کے جمع، جمع سے واحد، یہ تمام چیزیں مکمل آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے، اور اردو کے جو جملے ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیسن میں موجود ہیں، یہ جو بھی آپ لوگوں نے پڑھایا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ تحریری شکل میں یہ ساتھ ساتھ تیار کرتے چلے جانا ہے، اور جیسے ہی ہماری انشاءاللہ تعالی چھٹیاں ختم ہوں گی، حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، تو یہ تمام جو تمارین ہیں یہ اس وقت آپ لوگوں کی چیک کی جائیں گی، اور آپ لوگوں سے یہ لیسن بھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آن لائن ریکارڈنگ کی شکل میں ریکارڈڈ جو لیکچرز ہیں یہ سارے بھی آپ لوگوں سے سنے جائیں گے، اس لیے بڑی ذمہ داری سے جو ہے آپ لوگ ان کو ساتھ ساتھ تیار کرنا شروع کر دیں۔ اب آئیے کویسچن نمبر 1 کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے کہ الی من ینتہی نسب جمال الدین الافغانی، کے جمال الدین افغانی کا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ما ہی اللغات التی تعلمها الافغانی، کہ وہ کون سی زبانیں ہیں جو افغانی نے سیکھیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے لماذا خرج الافغانی من مسقط راسہ، کہ افغانی اپنی جائے پیدائش سے کیوں نکلا۔ اس کے بعد ماذا قال الافغانی لزعماء الہند عند رحیلہ، کہ افغانی نے کوچ کے وقت ہندوستان کے قائدین سے کیا کہا۔ اس کے بعد اگلا کویسچن نمبر 5 جو ہے من استقبل والا، تو من استقبل الافغانی عندما وصل الى الاستانتی، کہ جب افغانی آستانہ عالیہ پر پہنچا تو کس نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 6 من این اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی، کہ افغانی نے اپنا مجلہ، اپنا میگزین یا اپنا رسالہ العروۃ الوثقی کے نام سے کہاں سے جاری کیا۔ کویسچن نمبر 7 فی ای سنۃ توفی سید جمال الدین الافغانی،
फी अय्यि सनतिन, किस साल सैयद जमालुद्दीन अफ़ग़ानी ने वफ़ात पाई। तो ये तमाम मालूमात आप लोगों के लेसन में मौजूद हैं। आप लोगों ने पहले लेसन को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, उसके बाद इन सवालात के जवाबात आप लोगों ने अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं, जो कि जब हमारी जो क्लासेज जो है बाकायदा कॉलेज खुलने के बाद जो है वो शुरू होंगी, तो उस वक्त ये चीज़ें चेक की जाएंगी और लेसन भी आप लोगों से सुने जाएंगे। उसके बाद जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 है इमलाइल फरागात इतालिया कलिमात मुनासिबात, खाली जगह मुनासिब कलिमात के साथ पुर करें। ये भी तमाम जो है जुमले मौजूद हैं आप लोगों के लेसन में। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 सहीह जुमल तारीख, नीचे दिए गए जुमलों को दुरुस्त करें। तमाम जुमले आप लोगों के लेसन में मौजूद हैं। तो यहाँ जो है जुमलों में कुछ गलतियाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने ये जुमले अपने लेसन से ढूंढने हैं और जहाँ जहाँ जिस लफ्ज़ के लिखने में या ग्रामेटिकली जो जो गलतियाँ हैं वो आपने उनको नोट करना है, अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद उसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हातिल मुफरदात लिमा याती मिनल जुमूई, हाती लाइए अलमुफरदात वाहिद अल्फाज लिमा याती जो नीचे दिए गए हैं मिनल जुमूई जमा में से, यानी जो नीचे जो है तमाम 1 2 3 4 5 6 जो कलिमात हैं ये सब जो है जमा के कलिमात हैं। तो सवाल किया जा रहा है कि आप इनसे वाहिद बनाइए। तो आप ये तो अभी आप लोगों के सामने बोले जाएंगे, आप लोग साथ साथ इनको जो है वो सुने और तैयार कर लें। आप लोगों के लेसन में से ही ये तमाम कलिमात जो हैं ये लिए गए हैं। नंबर 1 है मबादिउन, उसूल इसका मतलब है और इसका वाहिद है मबदाउन। नंबर 2 उसरुन, ये जमा है और इसका वाहिद है उसरातुन, एंड पे गोल दे उसरातुन खानदान, जमा उसरुन। अकालीमुन सूबे, प्रोविंसेस जो होता है सूबे। इक़लीमुन वाहिद है, जमा यहाँ इस्तेमाल हुई अकालीम, आप लोगों ने वाहिद बताना है। इक़लीमुन सूबा प्रोविंस। अवासिमुन आसिमतुन स्वाद के साथ। दारुल हुकूमत कैपिटल, दारुल खिलाफा जमा यहाँ इस्तेमाल हुई है अवासिमुन, वाहिद हो गया आसिमतुन। ज़ुअमाउन ज़ईमुन वाहिद है, कायद लीडर रहनुमा, यहाँ जमा उसकी इस्तेमाल हुई है ज़ुअमाउन, आप लोगों ने वाहिद बताना है ज़ईमुन। सलाहिफुन कछुए वाहिद है, सुलहफातुन कछुआ, जमा सलाहिफुन। तो ये मबदउन उसरतुन इक़लीमुन आसिमतुन ज़ईमुन और सुलहफातुन, ये हो गया आप लोगों का अभी सामने आपके एक ये क्वेश्चन कर दिया गया हमने। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर्रफिल मादी वल मुदारि मिनल अफ़आल अल आतिया, सर्रफी गर्दान तहरीर कीजिए मादी और मुदारे से जो नीचे अफ़आल दिए गए हैं। ये अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस्तख़दिमिल कलिमात अत्तालिया फिल जुमलिल मुफीदा, इस्तख़दिमी इस्तेमाल कीजिए अल कलिमात अत्तालिया नीचे दिए गए कलिमात को, फिल जुमलिल मुफीदातिन फी का मतलब में जुमलतुन की जमा जुमालुन, मुफीद जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी अरबी ज़ुबान में आप लोगों ने जुमले बनाने। मीनिंग्स ये सारे जो कलिमात हैं हमने इनके मानी जो है लेसन में बार बार इनको पढ़ा है, एक दफ़ा फिर बोल दिए जाते हैं। तो आप लोग जो है इनके जुमले जो है अपने लेसन से भी लेके जो है आप तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बीअतुन माहौल, नशा उसने परवरिश पाई, उद्वन रुकन या मेंबर, लुगातुन ज़ुबानें, मनासिबुन ओहदे, राहीलुन कूच करना सफ़र करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है तर्जुमे इलल अरबिय्यती, तर्जुमा कीजिए अरबी ज़ुबान में। अब ये जितने भी उर्दू में जुमले दिए गए तमाम की जो अरबी के जो ट्रांसलेशन है वो आप लोगों के लेसन में मौजूद है। तो आप लोगों ने जब अच्छे तरीके से लेसन को आप लोग पढ़ लेंगे तो इस तमरीन को हल करना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही सहल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी तरफ आ जाइए कि माजी और मुज़ारी की गर्दानी तहरीर कीजिए नीचे दिए गए अफ़आल से। अब पहला उससे फेल है इस्तक़बला, इस्तक़बला उसने इस्तिक़बाल किया। गर्दाने आप लोग जो है यकीनन अगर आप लोगों ने जो है ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है और अगर आप जो है पीछे अपना पूरा पहले साल पे नज़र दौड़ाइए तो हमने बहुत ही डिटेल से फ़ेल मादी मारूफ, फ़ेल मुदारे मारूफ, फ़ेल अमर हाजिर, फ़ेल नहीं, ये सारी गर्दानें बार बार जितनी दफ़ा लेसन में आई हैं कि किसी भी जो है
आगे एक्सरसाइज तमरीन पे आई हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे हमने बड़ी डिटेल से बार बार लिख के देखा है। आप लोग के टेस्ट भी जो है क्लास टेस्ट बार बार लिए गए हैं। तो अगर जो काफ़ी सारे स्टूडेंट बड़ा जो है हौसला अफजा रिज़ल्ट रहा है उनका, जब भी मैंने गर्दानों का टेस्ट किया है या सुनी है, तो अगर जो है थोड़ी बहुत इस वक्त अगर आप लोग के जहन से निकल गई हैं, दोबारा अपनी फर्स्ट ईयर की नोटबुक्स जो है वो खोलिए, तो यकीनन जो है आपको तमाम गर्दानें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दोबारा जो है वो ज़हन में आ जाएगी। तो बहरहाल इस वक्त जो है ये बोली जा रही हैं आप लोगों के सामने, और आप लोगों ने हर फेल से मादी और मुदारी की गर्दानें इस वक्त जो है आप लोगों के सामने जो है वो बोली जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोटबुक पे हर फेल के साथ पहले मादी मारूफ की गर्दान और उसके बाद उसी से फिर मुदारे मारूफ की गर्दान उस जो है वो आप लोगों ने बाकायदा अपनी नोटबुक में ये सारी लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने जो है ज़िंदगी दी तो हम जो है बशर्ते ज़िंदगी हम जो है ये क्लास में जो है सारी ये देखेंगे और इसको चेक भी किया जाएगा। तो आप लोग जो है एक दफ़ा सुन लीजिए ताकि आप लोगों के लिए जो है सहूलत हो जाए मादी और मुदारे की गर्दानें जो है वो लिखने में। सबसे पहले है इस्तक़बाला। जैसे कि हर दफ़ा हमने जब गर्दान तहरीर की थी, प्रैक्टिस की थी, आप लोगों को याद होगा कैसे हम करते थे। पूरा एक उसका पैटर्न होता था, हम 4 लाइनें पहले लगाते थे जिसे 3 कॉलम बन जाते थे। पहले कॉलम के ऊपर जो है हम लिखते थे वाहिद, सेंटर वाले के ऊपर लिखते थे तस्निया। तस्निया का मतलब क्या होता है? 2, वाहिद का मतलब होता है 1, और उसके बाद जमा। जमा जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि अरबी में जो है बाकी ज़ुबानों से जो है एक डिफरेंट चीज़ क्या है कि इसमें 2 चीज़ों के लिए एक अलग से सीगा मौजूद होता है, और 2 से ज़्यादा चीज़ें 2 चीज़ें अरबी ज़ुबान में जमा नहीं कहलाती, वो तस्निया कहलाती हैं। और 2 से ज़्यादा चीज़ें का चाहे वो 3 हो, 300 हो, 3000 हो, 3 लाख, जो वो सब जो है जमा के दायरे कार में आएंगी। तो यह हमने 4 लाइनें लगाई, 3 कॉलम बने, वाहिद तस्निया जमा ऊपर लिखा। उसके बाद साइड पे हमने लिखा सबसे पहले मुज़क्कर गायब, उसके बाद उससे नीचे लिखा मुअन्नस गायब, उसके बाद नीचे लिखा मुज़क्कर हाजिर, उसके बाद नीचे लिखा मुअन्नस हाजिर, और उसके बाद नीचे इकट्ठा मुतकल्लिम के सीगे चुके एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं तो हम इकट्ठा लिख लेते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कलाम करने वाले को कहते हैं। तो अब गर्दाने आप लोगों के सामने यकीनन जो है अगर थोड़ा बहुत अगर आपके ज़हन से निकल भी गया हो तो अभी जैसे ही बोला गया है तो आप लोगों को जो है यकीनन हर चीज़ बिल्कुल जो है माइंड में बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब गर्दाने सुनते चले जाइए। इस्तक़बाला से मादी मारूफ की गर्दान इस तरह से की जाएगी। इस्तक़बाला, इस्तक़बाला, इस्तक़बलू, इस्तक़बलत, इस्तक़बलता, इस्तक़बलना, इस्तक़बलता, इस्तक़बलतुमा, इस्तक़बलतुम, इस्तक़बलती, इस्तक़बलतुमा, इस्तक़बलतुन्ना, इस्तक़बलतु, इस्तक़बलना, इस्तक़बलना। उसके बाद इख्तलाक़ा। इख्तलाक़ा का मतलब कहता है उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, झूठी तोहमत लगाई, झूठ बोला, बहुत सारे ये इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। तो अब इससे मादी की गर्दान पहले सुन लीजिए। इख्तलाक़ा, इख्तलाक़ा, इख्तलाक़ू, इख्तलाक़त, इख्तलाक़ता, इख्तलाक़ना, इख्तलाक़ता, इख्तलाक़तुमा, इख्तलाक़तुम, इख्तलक़ती, इख्तलक़तुमा, इख्तलक़तुन्ना, इख्तलक़तु, इख्तलक़ना, इख्तलक़ना। उसके बाद तीसरा फेल दिया गया है इंसरफ़ा। इंसरफ़ा का मतलब होता है वो दूर हट गया, वो परे हो गया या वो फिर गया। तो इससे मादी मारूफ की गर्दान उसी तरह 4 लाइनें, 3 कॉलम बनेंगे, वाहिद तस्निया जमा और 7 साइड पे सारे लिख के तो गर्दान अब बोली जा रही है मादी मारूफ की। इंसरफ़ा, इंसरफ़ा, इंसरफ़ू, इंसरफ़त, इंसरफ़ता, इंसरफ़ना, इंसरफ़ता, इंसरफ़तुमा, इंसरफ़तुम, इंसरफ़ती, इंसरफ़तुमा, इंसरफ़तुन्ना, इंसरफ़तु, इंसरफ़ना, इंसरफ़ना। ये तो हो गई तीनों अफ़ाल से मादी मारूफ की गर्दानें। अब आप लोगों के सामने बोली जाएंगी इन तीनों से बारी बारी मुज़ारे मारूफ की गर्दानें। तो इस्तक़बाला से फ़िल मुज़ारे मारूफ बनेगा यस्तक़बिलू,
गर्दान उसी तरह से आप लोगों ने ऊपर उसका लिखना है से यस्तकबिलु फिर मुदारे मारूफ और उसकी गर्दान, और जो है 4 लाइनें 3 कॉलम वाहिद तस्निया जमा और साइड पे वो सारा मुज़क्कर गायब मुअन्नस गायब मुज़क्कर हादिर मुअन्नस हादिर मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम। तो गर्दान बोली जा रही है उसको तवज्जो से सुनिए। यस्तकबिलु यस्तकबिलानी यस्तकबिलूना तस्तकबिलु तस्तकबिलानी यस्तकबिलना तस्तकबिलु तस्तकबिलानी तस्तकबिलूना तस्तकबिलीना तस्तकबिलानी तस्तकबिलना अस्तकबिलु नस्तकबिलु नस्तकबिलु। अगला फेल इख्तलका से फिर मुदारे यख्तलिकु, मुदारे मर्द से अब गर्दान इस तरह से होगी यख्तलिकु यख्तलिकानी यख्तलिकूना तख्तलिकु तख्तलिकानी यख्तलिकना तख्तलिकु तख्तलिकानी तख्तलिकूना तख्तलिकीना तख्तलिकानी तख्तलिकना अख्तलिकु नख्तलिकु नख्तलिकु। अगला फेल इन सारफा से फेल मुदारे यनसारिफु, वो फिर जाता है जब वो फिर जाएगा, वो हट जाता है जब वो हट जाएगा। तो गर्दान उसी तरह से पूरा एक जो है वो कॉलम बना के उसके बाद के मुज़ारे मारूफ की गर्दान किस तरह से की जाएगी सुनिए। यनसारिफु यनसारिफानी यनसारिफूना तनसारिफु तनसारिफानी यनसारिफना तनसारिफु तनसारिफानी तनसारिफूना तनसारिफीना तनसारिफानी तनसारिफना अनसारिफु ननसारिफु ननसारिफु। तो अजीज तालिबात ये देखिए पूरी जो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पे जो तमरीन सारी उसके क्वेश्चन सारे जो है बोले गए, बताया गया कि लेसन से सवाल समझा दिए गए और लेसन से बाकी आप लोगों ने अपने नोटबुक्स पे बड़ी ही तवज्जो से जिम्मेदारी से इनको जो है आप लोगों ने लिखना है ताकि आप लोगों की मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट लेसन और उसके साथ ही इसकी तमरीन जो है वो मुकम्मल हो गई है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ज़मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला कल हम अगले लेसन का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।